শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার মধ্যে মধ্যম স্থানে অষ্টম অধ্যায় শোভা পাচ্ছে। আদি মধ্য অন্ত সর্বত্রে যিনি বিরাজিত, যার শাস্ত্রীয় পরিভাষায় নামাকরণ হয়েছে ব্রহ্ম। অখণ্ড সত্তার, অনন্ত সত্তার নাম। যদিও বা সে পরম সত্তাকে নাম রূপ দিয়ে বিশেষিত করা যায় না, ব্রহ্ম বললেও যেন অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার কাছাকাছি তাকে উপলব্ধি করার মতো আমাদের সনাতন সাহিত্যে এমন অন্য কোনো শব্দ নেই যাকে বোঝানোর জন্য মানুষের কাছে এই ব্রহ্ম শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ নেই। যদি বা নাম রূপ মিথ্যা বা নাম রূপ বলতে সীমাবদ্ধ একটা সত্তা বোঝায়, কিন্তু ব্রহ্ম সেই নাম রূপের অতীত একটি শব্দ, একটি সত্তা, একটি এন্টিটি, অবস্থান। যদি বা শাস্ত্রে বেদ বেদান্ত তাকে ব্রহ্ম বলছেন, কিন্তু কারা বলছেন তাকে ব্রহ্ম? যেই বলুক না কেন, সে ব্রহ্ম সমুদ্রের একটি জলবিন্দু। একটা জলবিন্দু যেমন একটা সাগরকে পরিমাপ করতে পারে না, তাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, বোঝাতে পারে না, কিন্তু অনুভব করতে পারে। যেই মনীষী, মুনি, ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, পরমর্ষি যেই বলুক না কেন, সে সত্তাকে শুধু ব্রহ্ম বলতে যে আর কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না তাকে বোঝানোর জন্য। তাই তাহাকে বলা হচ্ছে অবাং মনসগোচর। বাক্য দ্বারা তাকে বর্ণনা করা যায় না। আমাদের বহির্মুখী মন তাকে অনুভব করতে পারে না। তাকে অনুভব করা মানব জীবনে বিশেষ প্রয়োজন। সে প্রয়োজনের কথাও অত্র অধ্যায়ে বলেছেন। বাসকলি আর বাদ্র গুরু শিষ্য ব্রহ্ম কি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু গুরু তিনি মৌন রহিলেন। একবার, দুবার, তিনবার জিজ্ঞাসিলেন ব্রহ্ম কি, গুরু মুখ দিয়ে কোনো কথা বলছেন না। পরে বলছে, আমি তো তোমাকে ব্রহ্ম তত্ত্ব বলছি। অর্থাৎ ব্রহ্ম শব্দকে উপলব্ধি করতে হলে নিঃশব্দে উপলব্ধি করতে হবে, নীরবে নীরব ধ্যানে তাকে পেতে হবে। কেননা তিনি একমাত্র পরম সত্তা, পরম গতি, যাকে প্রাপ্ত হলে ভগবান গীতায় বলছেন যদ্গত্তান নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। সেই জন্য গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে অষ্টম অধ্যায়ের সূত্রপাতের হেতু রয়েছে। ভগবান বলছেন, যারা জরা মরণ থেকে মুক্তি পেতে চায়, জরা মরণ মোক্ষায়, তারা যদি আমার শরণাগত হয়, আমার উপাসনা করে, তারাই একমাত্র জানতে পারে তে তদ্ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কি জিনিস, অধ্যাত্ম কি জিনিস, সমগ্র সাধনভূত কর্ম রহস্য কি রূপ। অন্যরা তা জানতে পারে না। তো কারা জানতে পারে? মুমুক্ষু, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু। যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হন, সেই ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করেন। এটাকেই মহাত্মারা বলছেন এনকোয়ারি এক্সপ্রেস, অনুসন্ধান আত্মিকা সাধনা। একমাত্র যারা জিজ্ঞাসু, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু, মুমুক্ষু, এই জরা ভব ব্যাধি থেকে
জলৌকাবধ দেহ থেকে দেহান্তরের যে মৃত্যুর অবস্থা, সে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ওই অনুসন্ধান আত্মিকা ব্রহ্মানুসন্ধান মানব জীবনে বিশেষ প্রয়োজন। কেন ভগবান বলছেন এই ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত এই জরা মরণ থেকে মুক্তির অন্য কোনো उपाय नहीं। ताई अर्जुनेर प्रथम जिज्ञासा किंग तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? हम लोग का एक सत्ता है। घर में आपका सत्ता कौन है? आपका पिता माता है, घर में आपका सत्ता है। जो नहीं रहेगा तो आपका जीवन जीरो हो जाएगा। ऐसा हमका ब्रह्मांड में ऐसा एक सत्ता है जिसको नाम ब्रह्म है। और उस उनको व्यतीत, उनका अलावा हमारा जीवन शून्य है। उनको जानना चाहिए मानव जीवन में उनको क्या फायदा है, उनको जानकर क्या फायदा है। आपसे मोक्ष मिलता है, आनंद मिलता है, बंधन से आप छुटकारा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। इसलिए ब्रह्म को जानना जरूर प्रयोजन है। इस विषय में गीता में बताया है। समझ गए? ठीक है। तो ये जन जिज्ञासा अर्जुन जिज्ञासा पूछता है किसको? भगवान को पूछता है ब्रह्म कौन है, अध्यात्म कौन है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधिजगम कौन सा देवता का कौन सा चीज है, कैसा मानव अंतिम काल में उसको शरण लेकर उनको मिलता है। ऐसा 7 क्वेश्चन प्रश्न किया है भगवान का पास है। भगवान उत्तर दिया है पहला अक्षरं ब्रह्म परम। अक्षरं मतलब कोई शब्द नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, वाट नहीं है। ऐसे ऐसा चीज है जिसको कोई नहीं होता है, मरण नहीं होता है, व्यय नहीं होता, परिमाण भी नहीं होता है। हम लोग बच्चा में जन्म लिया, पैदा है, बच्चा से बच्चा बड़ा होकर आप भी ऐसा होगी, आप भी ऐसा है, आप भी एक दिन ऐसा हो जाएगा, आपका पापा माँ भी बड़ा हो जाएगा, परिणाम होता है। ब्रह्म ऐसा चीज कोई नहीं है, उसका हमेशा एक रूप होता है। इसका नाम ब्रह्म है। परम अक्षर, परम अक्षर मतलब जिसको खरण नहीं होता है, क्षय नहीं होता है, पर्यन नहीं होता है, लस नहीं होता है, नो लस्ट होता है। ऐसा नाम ब्रह्म भी है, उसको जानना पड़ेगा। परम अक्षर भी ब्रह्म, समग्र ब्रह्मांड व्यापी जो भी है, परम अक्षर ब्रह्म। और अध्यात्म कौन है? हमारा अंतर में जो बैठा है, आत्मा जो बैठा है, जो का आलोकित करता है, हम लोग समग्र शरीर में आलोकित, जीवन को आलोकित करता है। जिसको अंतर में है तो हम आंखों में देखता है, कान में श्रवण करता है, हाथ में काम करता है, पैदल में चलता है। किसको शक्ति से होता है? आत्मा से शक्ति से होता है, वो भी अध्यात्म है। वो ब्रह्म का एक शक्ति है, ब्रह्म का एक रूप है, अभिन्न सत्ता है, अभिन्न रूप है, वो अध्यात्म है। ये शरीर में नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। आप कौन है? शरीर नहीं है। आपको पूछता है आप क्या है, आप तो बोलते हैं मेरा नाम श्रेयस है, मेरा पिता नाम ऐसा है, माता नाम ऐसा है, मैं घर में मैं यहाँ पे है, हम भी रहते है। एक बाहर परिचय है, अंतर परिचय चीज है जिसका नाम आत्मा है, वही से असली परिचय। हमको आपको सबको एक ही असली परिचय है, उसका नाम क्या है? आत्मा है। वो को शास्त्रीय नाम होता है अध्यात्म। बोलो अध्यात्म को ने स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म होता है। किसको स्वभाव? ब्रह्मों का स्वभाव। ब्रह्म का स्वभाव मतलब ब्रह्म का एक रश्मि है, आलोक रश्मि है। जिन्हें सूर्यों में और अलग अलग रश्मि हो, हर सहस्त्र सहस्त्र आलोक रश्मि है। वो सूर्य से और सूर्य से अभिन्न रूप है। सब ब्रह्म हो से आलोक रश्मि है, आत्मा रूप, वो अभिन्न रूप है। वही स्वभाव है। ब्रह्मों को सौ का भाव है, सौ का शक्ति है, स्व का रूप है, इसका नाम अध्यात्म होता है। अध्यात्म परिचय हो गया तो इसका बाद कर्म क्या है? जो कर्म हम लोग के लौकिक कर्म करता है, अभी बौद्धिक भी कर्म होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कर्म भी होता है। जिसको कर्म में हम लोग को उन्नति होता है, बुद्ध होता है, श्रेयस होता है, उसको कर्म भी कर्म है। लौकिक हमारे हाथ में पाँव में जो काम करता है, मन में जो कर्म, वो भी असली कर्म नहीं है। असली कर्म कौन है? जो कर्म में हम लोग को उन्नति होता है, आत्मा को उन्नति होता है, मन को उन्नति होता है,
आज से श्रेयस, आपका नाम श्रेयस है ना? श्रेयस का मतलब यह परम मुक्ति, परम ज्ञान है, परम वस्तु चीज, जो वस्तु मिलता है, वो जो वस्तु मिलता है, श्रेष्ठ वस्तु मिलता है, वो इसका नाम सच्चिदानंद श्रेय, श्रेय है। और एक नाम प्रेय है। जागतिक वस्तु मिलता है वो प्रेय वस्तु है, और परम मुक्ति मिलता है, परम ज्ञान दान मिलता है, परम शांति मिलता है, आनंद मिलता है, उसका नाम श्रेय है। उसके लिए जो कर्म है असली कर्म है। तो आदिभूत कौन है? शरीर जो जायते और मृत्यते, जिसको फायदा होता है और मरण होता है, जो कि विनाश होता है, विनाश सब कुछ पदार्थ अधिभूत है। अधिदैव कौन है? अधिभूतों को जो परिचालित करता है, हिरण्यगर्भ ब्रह्म पुरुष बोला होता है शास्त्र में, उसका नाम हलो अधिदैव। अधियज्ञ कौन है? अधियज्ञ हमारा शरीर में बैठा है, परमात्मा रूप में बैठा है, एक आत्म रूप में चिदाभास रूप में बैठा है, अंतर रूप चैतन्य, और एक में मुक्त आत्म रूप में बैठा है अधियज्ञ, जो हमारा तीन अवस्था को साक्षी है, तीन अवस्था को दृष्टा है, वो भी अधियज्ञ है। तो আমাদের ব্রহ্ম, আত্মা এবং অধিযজ্ঞ এই তিনের মধ্যে অনেকেই গুলিয়ে ফেলে কোনটাকে কি বলা হয়, ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ম কি, বিশেষ করে অধিযজ্ঞ কি, এই তিনটার মধ্যে গুলিয়ে ফেলে। তো ব্রহ্ম হচ্ছে নির্গুণ নিরাকার পর ব্রহ্ম, ब्रह्म। आत्मा जो चिदाभास रूप है, अंतकरण उपहित चैतन्य, ये हलो अध्यात्म। और जो कूटस्थ चैतन्य है, जे परमात्मा रूपे जिन्हें हमारे त्रयोदश अध्याय आछे, तिनि निर्गुण रूपे থেকে কোনো কর্মের তিনি কথা নহে, তিনি কেবল साक्षी द्रष्टा, साक्षी रूप, द्रष्टा रूप। अधियज्ञ वासुदेव होता है, पुरुष बोला है, पूर्णम अनेन सर्वंगीनं पुरुष अथवा पुरी सयना भा पुरुष, ये हलो अधियज्ञ। ये तीनटा अलग अलग किंतु मूलत एक ही है। मूलत जो ब्रह्म है वो भी अध्यात्म, वो भी अधियज्ञ होता है, কিন্তু আমাদের অবস্থার জন্য এগুলো বোঝানো হয়েছে, অবস্থার জন্য। কিন্তু মূলত তিনজন পৃথক পৃথক নহে, একেরই উপাধি অনুসারে বিভিন্ন নাম মাত্র। তো এখানে যে আমাদের ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো, অন্তকালে চমামেব শরণ মুক্তা করে বরম য প্রয়াতি তজং দেহং সজাতি পরমাম গতিম। অন্তিম কালে, মৃত্যুকালে যে আমাকে স্মরণ করে মৃত্যুবরণ করে, से आमाके प्राप्त है। भगवान कहते हैं कि अंतिम काल में, मरण काल में, मृत्यु काल में जो लोग भगवान याद करके प्राण जाते हैं, जो चला जाता है यह काल से, वो ब्रह्म का प्राप्त होता है। भगवान याद करने शरण काल, तो अंतिम काल में भगवान की याद करना चाहिए। तो कौन सा कैसा याद होगा? समग्र जीवन में जो भगवान की याद करता है, रेगुलर भगवान के ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, उसको नाम लेता है, उसको बाप उसी समय आते हैं। जो नहीं करता है उसको बाप नहीं आते हैं उसी समय, वो अलग लोक में जाते, अलग जोने में जाते, अलग पशु पाके कीट पतंगे में वहां से रूप से जन्म लेता है। अच्छा नहीं होता है। भगवान ऐसे बात है कि अंत काल में, अंतम काले जो में मुझे शरण करता है और प्राण जाता है, उसे शरण करके वो भी मुझे के प्राप्त होता है, এটা अच्छा मृत्यु होता है। तो समग्र जीवने আমরা যদি ভগবানকে স্মরণ করি, ভগবানের নিয়মিত উপাসনা করে ধ্যান করি, অন্তিমকালে তার ভাব আমার মধ্যে আসবে। সেই জন্য ভগবান পরশ্লোকর বলছেন, জং জং বাপি সরং ভাবং তেজতন্তে কলেবরং তং তমবৈত কন্তে সদা তদ ভাব ভারিত। যে যে বাপ অন্তরতে করিয়া স্মরণ কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ, সেই ভাবে चित्त निविष्ट ताकाय कुंते देहांत जीव से ही भाव पाए। अंतिम काल में, मरण काल में आपका मन में जो भाव होता है उसी रूप से आप पर जन्म लेता है। नेक्स्ट जन्म में उसी जन्म। আর যেমন আমাদের প্রসিদ্ধ जड़भरतेर কাহিনী है, प्रसिद्ध আমরা सनातन साहित्य में कहानी है। भरत ऋषि, वो पहला जन्म बहुत तपस्वी होता है, उनको तपस्वी था, परम तपस्वी छिलो।
एक हरिण, मृग शिशु हरिण, डियर चिंता है ना, डियर हरिण। उनको माया परे, स्नेह परे क्या होगा, और हरिण शिशु में जन्म लेंगे। तपस्विता तो हरिण शिशु का ममता में आबद्ध होकर हरिण शिशु में जन्म लिया है। वो ऋषि था, किंतु मरण काल में, अंतिम काल में वह हरिण शिशु को भाव अंतर में, हृदय में उपस्थित हो गया, उसी रूप में मृत्युवरण किया और वो हरिण शिशु रूप से जन्म लिया। लेकिन जातीश्वर है, वो पहला पूर्व जन्म में, और तो फर्स्ट जन्म में वो क्या था, वो दिमाग में वो भाव है, मैं क्या था, अभी क्या हो गया, मैं तो ऋषि था, मैं तो मानव आदमी था, तपस्वी था, अभी हरिण शिशु बन गया। तो ऐसा जन्म हरिण शिशु जन्म समाप्त हो गया और मानव रूप में जन्म लिया। तो उनको पूर्व जन्म में वो क्या था, शरण में था, तब वो जड़ा हो गया, मतलब वो किसी को साथ बात नहीं करता है, पर सेंस है, अनुभूति है, उनको ज्ञान है, किंतु किसी को साथ बात नहीं करता है, किसी को माया में नहीं जड़ना चाहिए, किसी को बंधन में नहीं जड़ना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, इसलिए ईश्वर भाव से रूप से में रहते हैं। इसलिए हम लोग का हमेशा भगवान की याद करना चाहिए। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सब समय भगवान की याद करना चाहिए। आप भगवान याद करके अपना कर्तव्य निवारण करना चाहिए। आप छात्र है, लेखा करना चाहिए, पहले माँ सरस्वती को वंदना करो, भगवान की याद करो। इसलिए हम लोग का भगवान के एक नाम, गुरुजी नाम लेना चाहिए, जिसका नाम दीक्षा होता है। हम लोग क्यों दीक्षा लेता है, भगवान के हमें याद करना एक मंत्र चाहिए। भगवान का अनंत नाम, कौन नाम से हम उनको पास जाएंगे, उनको अनंत नाम है, काली, कृष्ण, दुर्गा, शिव, गुरु, बहुविध नाम है। कौन नाम से उनका हम पुकारे, कौन नाम से उनका आप पुकारे, तो गुरु आपको जय नाम देंगे, वो नाम से उनको पुकारे, तो वो भी आपका पास आ जाएगा, वो भी प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए हम लोग दीक्षा लेना सनातन एक संस्कृति है। बना तो संस्कृत देख लेना मतलब है भगवान के मंत्र लेना चाहिए, गुरु को पास उनको गुप्त नाम लेना चाहिए, ऐसा गुप्त नाम लेना चाहिए, जिसको हमारे परिभाषा में शास्त्र परिचय मंत्र होता है। मंत्र मतलब क्या है, मननात् रहती मंत्र, जो मंत्र जब करके आपको मन में परिष्कार होता है, मन साफ होता है, मन में जंजाल भी साफ होता है, मन शुद्ध हो जाता है। अशुद्ध में भगवान के याद करना चाहिए। इसका हम लोग में दीक्षा लेना जरूर। आप दीक्षा लिया नहीं भैया, आपको संस्कार भी नहीं होता है। कौन नाम से आप भगवान को पुकारो, कभी शिव, कभी दुर्गा, कभी शिव, राम, ऐसा नहीं होता है। एक गुप्त नाम चाहिए, जिसका नाम पुकार, जिसको शक्तिशाली नाम होता है, जो नाम आप लेकर योदाम से जाना चाहिए, जो नाम लेकर शरण करके आप यहाँ से परित्राण पाना चाहिए, जो नाम का परित्राण करेगा, मुक्त करेगा, ज्ञान देगा, आनंद देगा, शांति मिलेगा, ऐसा नाम हम लोग का चाहिए। वो भगवान को गुप्त नाम होता है, जिसको नाम मंत्र होता है। गुरु के पास जाकर वो मंत्र लेना चाहिए, तो आपको भगवान की याद करना वो अधिकारी होता है। এই জন্য ভগবান আমাদেরকে কি বলছেন, সর্বদা তাকে স্মরণ করো। তসমাৎ সর্বেষু কালেষু, কেননা কোন সময় মৃত্যু আসবে আমরা জানি না। আমাদের জন্য, মানবের জন্য মৃত্যু সব সময় उपस्थित। मानवेर जन्म आपका मरण काल, आप बुढ़ो हो जाएगा तब में आपके मरण होगा, ऐसे नहीं। बालक तो मरता है, मर जाता है, 6 मास का बच्चा मर जाता है, और 12 साल का लड़का मर जाता है, 20 साल का लेके मर जाता है, और 30 साल का पिता माता मर जाता है ना। हमारा मृत्युकाल सब समय उपस्थित है। ऐसा सब समय भगवान का मंत्र पुकारना जरूर है। जला मानव का मित्र कौन समय है, सब समय है। आप 60 साल का बाद में मर जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी उपस्थित होगा हम लोग का पता नहीं। पुरुष से नो, पुरुष से मित्र से काल कब उपस्थित होगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग का सब समय प्रस्तुत रहना चाहिए, भगवान के याद करना। तो एक साधक मृत्यु भय में
मित्र भय में उनको मन में एकदम गिरा हुआ है। एक साधक जिसको नाम अमृत, और साधन को भगवान जम तो उपासना करता है, इसलिए जम हलो मृत्यु का देवता का नाम, मृत्यु देवता का नाम जम। तो बालक तपस्या करता है मृत्यु देवता जम के प्राप्त करने के लिए, हम अमरत्व बल लेने के लिए वो तपस्या करता है। इसको नाम अमृत होता है। जमुना नदी किनारे में बैठकर हमेशा जमराज का मंत्र वो याद करता है। 1 साल 2 साल बहुत साल तपस्या करके जमराज प्रसन्न हो गया, उसका फ्रंट में खड़ा हो गया। जमृत आप आंख को खोलो, मुझे देखो कौन है, आपको आराध्य देवता हम आ गया, आप क्या और चाहते हैं आप मांगो। तो हम बहुत खुश हो गया अमृत तपस्वी। तो अमृत बोल हम अमरत्व चाहते हैं। बोले है तो हमारा मन में मृत्युभय बहुत मृत्युभय होता है, हम मरना नहीं चाहते, हमें अमरत्व प्राप्त होना चाहिए, मुझे आप अमरत्व वर दीजिए। भगवान जम बोलता है कि नहीं, ये दुनिया का नियम है, आप जन्म ले तो मरण होगा, जात सही ध्रुव मृत्यु जुवंग जन्म मृत्यु। आप नियम उल्लंघन नहीं कर सकते, आप दूसरा वर मांगो, आपको अमृत वर मैं नहीं दूंगा। और देना क्या दुनिया का नियम नहीं है, आप जन्म लिया है आपका मरण भी होगा, इसलिए आप तैयार हो। तो कौन वही अमृत बाबू और चाहते हैं जब मेरा मृत्यु आएगा आप पहला मुझे बता देना चाहिए, हम प्रस्तुत रहेंगे मृत्यु के लिए। बोले ठीक है, किसी को तो आपको भय नहीं होगा, हम आपको 4 चिट्ठी देंगे। क्या देंगे? लेटर आपको पास में मैं भेजाएंगे, कि भेजाएंगे 4 लेटर देंगे, आपका मृत्यु जब आएगा। तो बेटा अमृत जमराज तो चला गया, और अमृत बेटा तपस्या समाप्त करके ग्राम में जाओ तो और भोग पिपासा में डूब लिया। हाँ, भोग करता है, ऐसा खाते वैसा खाते घूमता है, ऐसे ऐसा करता है, ऐसा करके करके कौन 40 50 60 70 80 उम्र हो गया, तो बुढ़ा हो गया। तो बुढ़ा होने के लक्षण क्या होता है? वो सिर में जो बाल होता है वो भी सफेद होता है, जो अब भी तो काला है, मेरा तो सफेद होता है। आप जब बुढ़ा होगा तो एक रूप आते हैं, क्या होगा? वो सफेद हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, इसका आंखों में कम देखता है, आपको पास में टीथ है, दांत है, वो भी तो गिर जाते हैं, कर गिर जाते हैं। जब 80 50 से आपको उम्र होता है, आप तो कौन ऐसा बुढ़ो होता है, हाथी लाठी लेकर चलता है, आपके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं होता है, आप एक गिलास पानी चाहते हैं, पानी पीते चाहते हैं, और किसी को पास में आप मुझे एक गिलास पानी दे दो, मेरा शक्ति नहीं है, एक गिलास पानी लेकर हम पियेंगे। ऐसा आदमी के ऐसा जरा व्याधि भारत को आती है। अचानक एक दिनों भी क्या हो गया? मरण हो गया। आज जमदूत आकर उनके जमराज में पास में ले गया। जमराज को देखकर उनको बहुत गुस्सा आ गया, हम तो वर मांगा है, आप मेरा पास चिट्ठी भेजेंगे, जब मेरा मृत्यु आएगा तो आप तो चिट्ठी नहीं दिया, विदाउट परमिशन में जो ले आया आपको पास में, आपको तो मित्र देवता नहीं मित्र देवता हो। बोले मित्र देवता नहीं है, हमें मित्र देवता भी है, आपके पास एक चिट्ठी नहीं 4 चिट्ठी भेज दिया है। कितना चिट्ठी भेज दिया? 4 चिट्ठी भेज दिया। जब आप तो वो सीता, तब आपको सिर में जो बाल है वो भी तो ब्लैक था, अभी आपका बाल कैसा हो गया? बोले सफेद हो गया। पहला चिट्ठी है मेरा, आपको तब सावधान होना चाहिए, तब तो अचेतन हो गया, वो पिकासे में डुबकी लगाया है, आसक्त तो हो गया है, और मेरा चिट्ठी आपने नहीं खोला है, आपका शरीर है मेरा लेटर है, आपका शरीर मेरा ऐसा व्यवहार जो चिट्ठी का रूप है ऐसा चिट्ठी नहीं है, आपका शरीर मेरा लेटर है। तो पहला चिट्ठी वो जो आपको बाल जो सफेद हो गया है, मेरा कलम में लिखा है आपका शरीर में, ये हो गया। आज जब आप आंखों में किनो देखता है, ऑपरेशन में टाइम आ गया, तो आपके 2 नंबर चिट्ठी भेज दिया आपको। जब आपको दांत टीथ गिर गया तो 3 नंबर चिट्ठी दे दिया। जब आपको बुढ़ा हो गया, हमारा 4था चिट्ठी दे गया। मेरा जो बात था माँ सही बात से आपको भेज दिया, किंतु आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे।
अपना कर्तव्य जो मुझे की याद करना अब ये भी नहीं किया, इसलिए यार अवचेतन होकर आप मृत्युलोक में आ गया। आपको सुख दुख का विचार होगा यहाँ पे। आप तो एक जीवन में एक हमारा क्या होता है वो पेन ड्राइव में मेमोरी, जीवन में हर आदमी का एक मेमोरी जमराज को पास में होता है। मेमोरी चिंता है ना, पहचान है मेमोरी है पेन ड्राइव में, और मोबाइल में देखकर आप गाना सुनता है, नाटक भी मूवी भी सुनता है। और जीवन में हर चीज को हर आदमी को मेमोरी हम जमराज का पास है रहेगा। आप जब जाएंगे आपके मेमोरी टेलीविजन में देगा। आप हर सारा जीवन में क्या क्या किया आप अपने आंखों से देखो। आप कितना पुण्य किया कितना पाप किया देखा जा रहा है कि कोई आदमी को 80% पाप कर्म है, 20% पुण्यात्मक कर्म है। तो पाप कर्म के लिए आपको नरक मिलेगा, पुण्यात्मक के लिए आपको स्वर्ग मिलेगा। पहला आप कौन भोग करना चाहते हैं, ऐसा आप प्रश्न सम्मुखीन होता है। इसलिए हर हमारा हर जीवन में और हर टाइम सबसे ऑलवेज पुण्य कर्म, सत्कर्म, शुद्ध कर्म करना चाहिए, जिसको नाम तपस्या, दान, धर्म, ध्यान करना चाहिए। भगवान का नाम लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, वो दीक्षा लेकर मंत्र जप करना चाहिए, भगवान को करना चाहिए। हमारा इस जीवन में उन्नति करने के लिए, मन को उन्नति करने के लिए, आत्मा को उन्नति करने के लिए, आत्मोन्नति होकर आप ऐसा जीवन से जाएगा तो उत्तम स्थान में मिलता है। ऐसा है हम लोग का उद्देश्य, हर आदमी को उद्देश्य ऐसा ही होता है। वो जो स्थान में आपको मिलेगा उसको नाम ब्रह्म स्थान, ब्रह्म पद, तद विष्णु परम पदा सदा पश्यन्ति सूर्य। इसलिए हम लोग को गीता पढ़ना, गीता भावार्थ को चिंतन करना और ईश्वर को चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। ओम तत्सत पूर्णमदः पूर्णमिदं